Good morning, all of you. Hari Om, Hari Om, Hari Om. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, in the last video, we have done 5 MCQs from the revision worksheet and some chapter explanation. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में ये किया था, MCQs किए थे 5 and then we have done चैप्टर एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू फॉलो सेम. ओके, हम आज भी वैसा ही करेंगे. सी, वर्कशीट का रिवीजन मैंने करवा दिया है, पर अगेन मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारी एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम है. तो अगर मैं आपको रिवाइज़ नहीं करवाऊँगी और सीधा चैप्टर एक्सप्लेन करवाऊँगी तो आप लोग वर्कशीट भूल जाओगे. तो मैं इसलिए वर्कशीट भी कंटिन्यू रख रही हूँ और चैप्टर भी. ठीक है, सो let's start with our worksheet first. Okay, so in the last video we have done till 5 MCQs. So today we are going to start with our 6th number. ठीक है, so number 6, the animals who live around us is called dash. A, domestic animals. B, wild animals. C, wild animals are very harmful for us and we cannot take them in our house or around us. Okay, but domestic animals, they are very kind and they are not harmful for us and they do not harm us, so we can take them in our house and around us. Okay, so option A is, that is domestic animals, that is our answer. Now number 7, who carry loads? Option A, goat, and option B, donkey. C, आपने वो डोंकी वाली स्टोरी सुनी होगी ना, तो उसमें भी आपको पता होगा कि वो लॉर्ड्स को कैरी करके जाता था रिवर के उस पार, फिर बीच में पानी में बैठ जाता था. वो भी आपने सुना होगा. सो हु कैरी लॉर्ड्स? नॉट गॉट, बट द आंसर इज डोंकी. सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर, दैट इज डोंकी. नाउ नंबर 8, which animal is herbivorous? Option A, lion, and option B, elephant. So herbivorous. So herbivorous is the animal who eat only plants, flower, fruit, leaves, grass. Okay, they are called as eating animals. Okay, they do not eat flesh of other animals. So here two options are there, lion and elephant. So lion तो दूसरे एनिमल को मार के खाता है ना, so that is not herbivorous animal. So option B is our answer, that is elephant. Number 9, flesh eating animal is called dash. A, omnivorous. B, carnivorous. C, flesh eating animals होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवरिस. ठीक है, ओमनिवरिस हम किसे बोलते हैं? जो प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश भी खाते हैं. ठीक है, उनको हम बोलते हैं ओमनिवरिस. सो ऑप्शन बी इज अवर आंसर, दैट इज कार्निवरिस. नाउ नंबर 10, एनिमल हु ईट प्लांट्स एंड फ्लैश इज कॉल्ड डैश. ए, हर्बिवरिस and B, omnivorous. So animal who eat plants and flesh, they are called as omnivorous. Okay, so option B is our answer, that is omnivorous. Now we are going to start our chapter explanation. Okay, और इसके आगे की वर्कशीट हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस करेंगे. ठीक है, so now quickly go and bring your EVS textbook and open page number 79 again. Okay. Okay, so this is page number 79. You can see it on your screen. So last lecture में मैंने explain किया था कि we travel with different vehicles. Some people use motorcycle, some are using bus, and some are using train also, car. So we have different options to travel. Okay, so today let's start with our chapter explanation. Now next है invention of the wheel. See, in the last video I told you that without wheel we cannot travel. आपने कभी इमेजिन किया कि व्हील के बिना कैसे हम चला सकते व्हीकल? सो इसमें आपको बताएंगे कि इन्वेंशन है, मतलब उसका
जो फर्स्ट व्हील कब बना था, ठीक है, उसकी व्हील को बनाने की प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और उसको किसने बनाया था। लॉन्ग लॉन्ग अगो पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट। फुट मतलब उन अपने पैरों पे, ठीक है। तो बहुत बहुत टाइम पहले जो लोग थे ना वो कैसे ट्रैवल करते थे, थ्रू द फुट, ओके, मतलब चल के ट्रैवल करते थे। दे डू नॉट हैव एनी व्हीकल टू ट्रैवल, ओके। देन men tamed animals such as horses, elephants, oxen and donkeys। और उसके बाद वो लोग किसका यूज़ करने लगे, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, ऑक्सन एंड डोंकीज, उन सब का यूज़ करने लगे ट्रैवल करने के लिए। These animals were used to carry people and goods। और ये सारे जो एनिमल्स है वो किसके लिए यूज़ होने लगे, पीपल मतलब इंसान, और गुड्स मतलब जो सारे प्रोडक्ट है, कुछ चीज़ें है, फिर लॉर्ड है सारे, उन सबको कैरी करने के लिए ये सारे एनिमल्स यूज़ होने लगे, ठीक है, बहुत साल पहले। तो ये वाले टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ था, ठीक है। Now turn the page, open page number 80. Now let's start. The invention of the wheel changed the way people traveled। तो ये जो व्हील का इन्वेंशन हुआ उन लोग, उससे क्या हुआ कि पीपल की जो ट्रैवल करने की मेथड थी ना वो चेंज हो गई। क्योंकि पहले तो वो लोग या तो चल के ट्रैवल करते थे या तो फिर ये सारे जो लोड्स कैरी करते हैं वो सारे एनिमल्स को यूज़ करते हैं। पर जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उसके थ्रू पीपल की ट्रैवलिंग मेथड चेंज हो गई। द व्हील वॉज यूज टू मेक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट that made travel easier and faster। See, आप लोग कभी कंपैरिजन कर सकते हो बस की और खुद की। आप कितना भी दौड़ो, कितना भी रनिंग कर लो, पर आप बस की कंपैरिजन कर पाओगे या फिर कोई स्कूटर की कंपैरिजन कर पाओगे? नो। क्यों? क्योंकि व्हील्स आर फास्टर देन अस। मतलब व्हील्स है जो ज़्यादा जल्दी से रूट को कवर करता है, ठीक है, मतलब हम जल्दी से पहुंच पाते हैं थ्रू द व्हील्स। इसकी जगह पे अगर हम चल के जाते हैं या फिर दौड़ के जाते तो कितना चल पाते हैं, हम ज़्यादा नहीं दौड़ पाते या फिर नहीं ज़्यादा चल पाते। तो ये जो व्हील्स का इन्वेंशन हुआ तो वो किस में यूज़ होने लगा, ट्रांसपोर्ट की मेथड में यूज़ होने लगा एंड ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स बनाने में यूज़ होने लगा। सो दैट मेक प्रोसेस और दैट मेक ट्रैवल वेरी ईजियर एंड फास्टर। मतलब सब लोग इजीली जा पाते थे यहाँ से वहाँ। द अर्लीस्ट व्हीकल्स वेर परहैप्स कार्ट्स दैट वेर पुल्ड बाय एनिमल्स। सी, कार्ट्स मतलब जो हमारे गांव में होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा गांव पे होता है, जिसके थ्रू हमारे जो दादा दादी है वो अपने खेत में जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कार्ट, ठीक है। तो वो किसकी मदद से वो खींचते हैं, दैट इज़ ऑक्सन। वो आगे होते हैं, वो जो बुलॉक होते हैं वो सारे आगे होते हैं ना, उसकी थ्रू वो कार्ट को खींचते हैं। सो सेम एज ये व्हीकल की मदद से इन लोगों ने क्या इन्वेंट किया, एक कार्ट बनाया और जिसको कौन खींचता था, एनिमल्स। The wheel was then used to develop the modern means of transport such as cars, buses, trains and aeroplanes। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो व्हील्स थे उसका यूज़ होने लगा, डेवलपमेंट हुई थोड़ी, और फिर उसके बाद मॉडर्न मीन्स मतलब हमारे जो मॉडर्न व्हीकल है वो बनने लगे। फॉर एग्जाम्पल कार्स, बसेस, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। तो ये सारे व्हील्स की मदद से हमारे मॉडर्न व्हीकल बने, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि व्हील्स की वजह से हम बहुत सारा इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना पड़ता या फिर हमारे बॉडी को कोई भी तकलीफ नहीं होती, हम इजीली यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। यस और नो? यस। सो व्हील्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, or without wheels we cannot travel, yes or no? Yes, and vehicle cannot go from one place to another place. So wheels are basic thing from the vehicle, for the vehicle, okay? So
नाउ नेक्स्ट, डिड यू नो, आपको पता है, पीपल परहैप्स गॉट द आइडिया अबाउट अ व्हील व्हेन दे सो अ लॉग ऑफ वुड रोलिंग डाउन अ हिल। सी, जो पहले के लोग थे ना, उनको जनरली ये आइडिया था, कैसे, जो लॉग मतलब बड़ा सा लकड़ी का जो होता है ना टुकड़ा, वो हिल्स पे से रोलिंग डाउन मतलब हिल्स पे से जो नीचे जाता था ना, तब से इन लोगों को ये व्हील्स का आइडिया था। They realized that they could move heavy objects easily using the log। और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो लोग बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसको भी वो आसानी से हिला सकते हैं यूजिंग लॉग। मतलब ये जो लॉग है ना, उसकी वजह से वो लोग आसानी से हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी हिला सकते हैं। Then they tried using more than one log and rolling the logs along together। और फिर उन लोगों ने क्या किया, अपना ब्रेन यूज़ किया एंड देन उन लोगों ने लॉग्स को एक साथ जोड़ा और फिर उसको वो लोग क्या करने लगे, रोलिंग लॉग्स को यूज़ करने लगे। किसके लिए, ये सारी चीज़ों को, हैवी ऑब्जेक्ट्स को हिलाने के लिए, ठीक है। देन वन डे परहैप्स समवन कट द एंड फ्रॉम अ लॉग एंड मेड द फर्स्ट व्हील। और फिर उसके बाद एक इंसान ने क्या किया, किसी ने, कौन है वो नहीं पता है, पर किसी ने क्या किया, लॉग को कट किया, एंड में से थोड़ा सा पतला सा लॉग को कट किया एंड देन उसमें से बना हमारा फर्स्ट व्हील, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, ये आपको याद रखना है कि उन लोगों को आइडिया कहाँ से आया था व्हील्स का आइडिया उसको आया था रोलिंग लॉग में से, ठीक है। जो लकड़ी वुडन लॉग है ना, जो हिल्स पे से रोल हो रहा था, मतलब नीचे गिर रहा था, उसमें से उन लोगों को व्हील्स का आइडिया आया, ठीक है। सो नाउ वी आर डन विथ टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू little explanation of this chapter and revision of the worksheet. Okay, so stay safe at your home, do practice of revision worksheet. Bye bye.